Hello class, welcome back to your science class. So kids, we have started this chapter, that is fiber to fabric, right? You know this very well that we have started this chapter and the name of the chapter is fiber to fabric, and in that up to now we have completed few parts, like we have completed about we have completed about cotton plant. We have understand the concept of division of the plant. Now today, before starting the new concept, I would like to give a quick recall to the things that we have learned so far. Now the first thing here is, जो सबसे पहली चीज हमने इधर पढ़नी है वो क्या है? The first thing that we have to read here is, सबसे पहले we are going to take a quick recall of the things that we have read so far. First is fibers. Now fibers are divided into two broad categories, that is natural fibers and synthetic fibers. दो broad categories में fibers बट गए हैं, that is the natural fiber and the synthetic fiber. Now natural fibers, what are the natural fibers? Fibers which are obtained from plant and animals, example cotton, silk, wool, is termed as natural fiber. And now the synthetic one, what is synthetic fiber? So the synthetic fiber are the man-made fiber which are not obtained from plant and animal sources. वो fiber जो कि plant और animal sources से हमें नहीं मिलते हैं, we get it from we get it from एनिमल सोर्सेस. ठीक है, एनिमल सोर्सेस से हमें ये नहीं मिलते हैं. दीज ऑल आर मेड इन फैक्ट्रीज. ये सब कहाँ बनते हैं? दे आर मेड इन फैक्ट्री. ठीक है, फैक्ट्री में केमिकल कंपाउंड को मिला के ये बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर. नाउ द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, examples of synthetic fibers are rayon, nylon and polyester. Rayon, nylons and polyesters are what? These are the example of the synthetic fibers. Okay, now next is from plant sources. अभी देखो नेचुरल फाइबर को आगे क्या किया है, टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इन्होंने. नेचुरल फाइबर्स को टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया, दैट इज the one that we get from the plant sources and the one that we obtain from the animal sources. plant sources और animal sources से जो हमें मिलते हैं. ठीक है, so the plant sources, first of all the plant sources. अभी देखो प्लांट सोर्सेस से क्या, पहला है कॉटन या जूट. ठीक है, सबसे पहले कॉटन, जूट. ठीक है, तो कॉटन एंड जूट. First of all, we will read about the cotton. Now, cotton is grown in black soil and in warm climate. black soil और warm climate में क्या होता है? कॉटन क्या किया जाता है? उगाया जाता है. ठीक है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में कॉटन क्या किया जा रहा है? उगाया जा रहा है. तो कॉटन इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल एंड द वार्म क्लाइमेट. ठीक है, ये हमने अभी कल के वीडियो में पढ़ा था कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में उगाया जाता है. तो अभी क्या है, हमने कल देखा कि फ्रूट जो होते हैं, fruits of cotton balls burst open on maturing and seeds are covered with fiber. seeds covered होती हैं फाइबर से. fruits जो होते हैं कॉटन के वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं. now the balls are picked by separating them. balls are what? जो कॉटन balls हैं वो क्या होते हैं? they are picked by separating them from the seeds by combing. we have read this that first of all सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जब कॉटन की बॉल्स आ गई पास में तो उसको क्या किया?
कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से उसको क्या किया, क्लीन किया। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से कॉटन की बॉल को, देखो दीज आर द कॉटन बॉल्स, तो कॉटन की बॉल को क्या किया, अब जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, उससे क्या किया, क्लीन किया। नाउ दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज गिनिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट गिनिंग। अब गिनिंग करने से क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं कॉटन की, ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं, वो निकल जाते हैं, ग्रीन सब्सटेंसेस है या सीड है वो निकल जाते हैं। नाउ द बॉल्स आर पिक्ड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, अभी क्या करना है, कॉम्ब करके क्या करना है उसे। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, कॉम्ब करके उसको कॉम्ब कर लिया, तो वो क्या हो गया, गिनिंग हो गया। अब आगे क्या है, लेट अस मूव अहेड, पहले हम ये देख लेते हैं। नाउ स्पिनिंग ऑफ यार्न, अभी देखो गिनिंग के बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, स्पिनिंग। ठीक है, गिनिंग के बाद जो अगला प्रोसेस आपके पास है वो क्या है, वो है स्पिनिंग। Now fibers are drawn out and twisted together to form yarn. Fibers are drawn out and twisted together to form the yarn. Spinning by hand is done by चरखा। ठीक है, जो स्पिनिंग होती है हैंड से is done by टकली और we also call it चरखा। ठीक है, now the spinning on large scale is done by machines also. machines में भी क्या होती है, स्पिनिंग जो होती है वो लार्ज स्केल में मशीन से भी होती है। दिस मच इज क्लियर। ठीक है, तो फाइबर सबसे पहले क्या हुआ, फाइबर्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म द यार्न, पहले यार्न बनाने के लिए फाइबर्स निकाला, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देन व्हाट दे हैव डन, आफ्टर दैट स्पिनिंग बाय हैंड इज डन बाय टकली और बाय चरखा। स्पिनिंग इज डन बाय द टकली और बाय द चरखा। Okay, now the next thing after this, the next is, अब देखो अब क्या हुआ, अब हमारे पास धागा आ गया, मतलब स्पिन करके वी हैव गॉट द थ्रेड, स्पिन करके वी हैव गॉट द थ्रेड। नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, आफ्टर गेटिंग द थ्रेड द नेक्स्ट इज व्हाट, अब मेकिंग फैब्रिक टू फ्रॉम यार्न में क्या आता है, सबसे पहले देयर आर द टू प्रोसेसेस, फर्स्ट इज वीविंग, पहला है वीविंग एंड द सेकेंड वन इज निटिंग। First is weaving and the other one is knitting. Now two sets of yarn are arranged together to form the fabric. It is done on loom. ये किस पे होता है? This is done on loom. ठीक है, now what is knitting? A single yarn is used to make the fabric. It is done by hand or by the machine. A single yarn, देखो जब टू सेट्स ऑफ yarn होते हैं तो वो weaving कहलाता है, knitting क्या होता है, सिंगल yarn से हम क्या करते हैं, निट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कॉटन। कॉटन में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कॉटन में क्या किया गया, कॉटन के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉटन व्हाट दे हैव डन इन कॉटन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कॉटन बॉल उगाई जाती है ब्लैक एंड वार्म ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में, क्लेई सॉइल में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट फ्रूट ऑफ द कॉटन, कॉटन बॉल जिसको बोलते हैं, फ्रूट ऑफ द कॉटन, उससे क्या किया गया, वो सूरज की गर्मी से वो बर्स्ट होके ओपन होता है ना, जब वो सूरज की गर्मी से बर्स्ट होके ओपन होता है तो वो बॉल्स जो होती है वो पिक कर ली जाती हैं। ठीक है, ना आफ्टर दैट उन बॉल्स को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो जो ये क्लीनिंग का प्रोसेस है व्हाट डू वी कॉल, ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम गिनिंग। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज गिनिंग, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम गिनिंग। नाउ द बॉल्स आर पिक्ड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द सीड एंड बाय कॉम्बिंग। अब उसे गंदगी को साफ करके जो हमें क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उससे उसे हम क्या करते हैं, वी स्पिन दैट, उसको क्या किया जाता है, उसको स्पिन किया जाता है। ठीक है, उसको स्पिन कर लिया ना, आफ्टर स्पिनिंग द नेक्स्ट इज व्हाट, स्पिन करने के बाद जो अगली चीज हमने करनी होती है वो क्या होती है, अब हमारे पास धागा आ गया, धागे से हम क्या करेंगे, कपड़े को बिन लेंगे। तो दिस इज द जर्नी ऑफ कॉटन।
Now, after discussing the cotton, let us discuss about the cotton, the next thing that we have to discuss here is jute. अब jute is what? Jute is the second type of fiber that we obtain from plant sources. Jute is what? Jute is the second type of fiber that we obtain from plant sources. ठीक है? So now let us talk about the jute. So here you can see this is the jute plant. Now what is jute? Jute fiber is obtained from the stem. Jute fiber, what happens? Jute fiber is obtained from the stem. The jute plant, देखो जूट फाइबर कहाँ से मिलता है हमें? स्टेम ऑफ द जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है. Okay. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. Jute plant is cultivated during the rainy season in India. Jute is mainly grown in, कहाँ पे जूट ज्यादातर उगता है? Okay. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. ये इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है? Unlike the cotton plant, jute plant is cultivated during the rainy season. During the rainy season इसको क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. In India, jute plant is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब क्या किया जाता है? जूट प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिन के लिए देखो क्या करते हैं, ये ऐसा जो प्लांट होते हैं इनको क्या करते हैं? पानी में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है. द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड. तो उसके बाद ये जो स्टेम होती है ये रॉट कर जाती है. रॉट मीन्स क्या? सड़ जाती है. और फिर जो फाइबर्स होते हैं उसको हैंड से क्या किया जा सकता है? हैंड से उस फाइबर को हम निकाल सकते हैं. हैंड से उस फाइबर को हम आसानी से नहीं, मतलब हैंड से उस फाइबर को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. ओके. नाउ okay, fine. Now see, same thing is mentioned here also कि मेनली जो जूट होती है उसकी खेती किधर होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. हार्वेस्ट कब होता है? फ्लावरिंग स्टेज पे. हार्वेस्टेड स्टेम्स आर इमर्स्ड इन वाटर इनिशियली. आफ्टर रोटिंग ऑफ स्टेम फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. हैंड फाइबर्स को क्या करते हैं? हैंड से अलग कर लेते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट योर स्क्रीन. यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी पिक्चर दिखेगी और इस पिक्चर से ये समझना बहुत आसान होगा कि किस तरह से जूट की खेती होती है और फिर उससे हमें यार्न्स मिलते हैं. ठीक है. जूट की खेती किस तरह से होती है और फिर उससे हमें यार्न कैसे मिलते हैं ये समझना बहुत ही आसान है इस पिक्चर के हेल्प से, इस स्लाइड के हेल्प से दैट जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ. तो सबसे पहले देखो जूट प्लांट. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? जूट प्लांट इतने बड़े बड़े ऐसे प्लांट्स बन गए. ठीक है. इतने इनकी बीज बोई जाती है. नॉर्मली रेनी सीजन में ये ज़्यादातर उस एरिया में उगते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, मतलब नमी ज़्यादा हो. तो जूट प्लांट ऐसे उगे. अभी देखो फिर क्या किया? हार्वेस्ट किया. हार्वेस्ट मीन्स वॉट? हार्वेस्ट मतलब क्या हुआ कि इसको काट लिया गया. ठीक है. अभी देखो अगला क्या स्टेज है? आफ्टर देखो ये जूट प्लांट है.
इसके बाद क्या हुआ, इसको काटा गया, हार्वेस्टिंग की गई। हार्वेस्ट में देखो इसे क्या किया जा रहा है, ये प्लांट्स को काट लिया गया, ठीक है ना। आफ्टर कटिंग द प्लांट, आफ्टर कटिंग दीज प्लांट, नेक्स्ट इज व्हाट, अभी आफ्टर कटिंग द प्लांट अगला क्या है प्रोसेस है, अब देखो उसको पानी में क्या किया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। उस अब इसी प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद क्या किया जाता है, ऐसे गंदे पानी में छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। ना जब ये फाइबर, जब ये फैब्रिक सड़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब ये फाइबर सड़ने लगता है, जैसे यहाँ पे देखो, जब ये सड़ने लगता है तो इसमें एक गमी सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, वो निकलने लगता है और उसके बाद फाइबर्स अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हाथों से खींच खींच के आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस पिक्चर में, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग। अभी आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, हियर आर टू मैन एंड व्हाट दे आर डूइंग, ये जो पानी में भिगोया हुआ है जूट, उसको क्या कर रहे हैं, उससे इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है, इसको इस तरह से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रेटिंग एंड वॉशिंग, वी कॉल इट रेटिंग एंड वॉशिंग, फाइन। एंड नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रॉ फाइबर्स। अभी यहाँ पे यही क्या हुआ, इसको सन ड्राई कर देते हैं, इसके बाद इसे क्या कर देते हैं, इसको सन ड्राई कर देते हैं। सन ड्राई करने से क्या होता है, सन ड्राई किया इसे, सन ड्राई से क्या हुआ, सन ड्राई से ये सूख के इस तरह से रॉ फाइबर बन गया। अब इसके बाद इसको यार्न्स बना देते हैं, वही बाकी का प्रोसेस सेम है जैसे कॉटन में करते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, यार्न बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जूट की खेती किया, जूट प्लांट की खेती किया, फिर उसको फ्लावरिंग सीजन, जब जूट फ्लावरिंग सीजन में होता है तो उसको क्या किया, उसको कट कर लिया, उसको हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद काट लिया जूट प्लांट को, उसके बाद पानी में छोड़ दिया सड़ने के लिए। अभी हम इसको अच्छे से बोर्ड पर समझेंगे, इसको पानी में छोड़ दिया सड़ने के लिए। आफ्टर दैट हमें क्या मिला, रॉ फाइबर मिला, ठीक है। अब उस रॉ फाइबर से क्या किया, यार्न बना लिए, ठीक है, उस रॉ फाइबर से क्या कर लिया, यार्न बना लिया, ठीक है। अब नाउ हियर आर द थिंग दैट वेयर जूट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जूट की जरूरत जहाँ पे होती है हमें, यहाँ पे वो कुछ टॉपिक दिए हैं, वो जगह जहाँ पे हमें जूट की रिक्वायर्ड होती है। नाउ देखो, जूट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रोप, बैग्स एंड सैक, ठीक है। रोप से जूट से क्या क्या बनता है, रोप, रोप मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखो, अब देख पा रहे होगे यहाँ पे रोप मतलब क्या, रस्सियां, ठीक है, बैग बन रहे हैं और झोले, सैक, झोले बनते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे चप्पल में भी इसको यूज किया जा रहा है। तो जूट जो है ये एक बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ड्यूरेबल फाइबर होता है। फाइबर, इसका फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इसीलिए देखो आलू वगैरह के जो बोरे बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। नाउ फाइन क्लास, सो अभी हमने जूट के बारे में समझा। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम बोर्ड। अभी हम बोर्ड्स पे आगे का जूट का पूरा प्रोसेस, किस तरह से जूट का फाइबर बनता है, उसका यूज क्या, ये सारा प्रोसेस हम कहाँ देखने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, so now I'm going to switch the camera toward my board. Fine. So let us start.
ओके क्लास, नाउ अभी देखो स्लाइड से हमने देख लिया जूट का और कॉटन की पूरी प्रोसेस, फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू नोट्स ऑन जूट। तो आज का जो फाइबर, जिस फाइबर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है जूट, फाइन। तो अभी हमें पता चला कि जूट इज व्हाट, इट्स अ वेरी ड्यूरेबल फाइबर। जूट इज व्हाट, इट्स अ वेरी ड्यूरेबल फाइबर, फाइन। So let us write about few lines on jute. So jute fiber, as we have read in NCERT also, jute fiber is obtained from the stem of the plant, ठीक है। So one thing that you have to keep in mind that jute fiber is obtained, jute fiber is obtained from the stem of the plant. Of the प्लांट। जूट फाइबर जो है वो कहाँ से उगता है, वो कहाँ से हमें मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज जूट इज कल्टिवेटेड इन विच सीजन, इन द रेनी सीजन। जूट इज कल्टिवेटेड in the rainy season, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड इज some jute producing Indian states are, some jute producing Indian states are अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट जिनमें की क्या होता है, जिनमें जूट प्रोडक्शन होता है। तो दे आर असम, few areas of Bihar and next is West Bengal, ठीक है। these all are the area जहाँ पे क्या होता है, जूट प्रोडक्शन होता है। नाउ राइट अप टू वेयर, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लाइन। अभी पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। नाउ अभी समझो, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। सबसे पहले वो स्टेम किसी जूट प्लांट के स्टेम से पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज जूट इज कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। जूट किस सीजन में कल्टिवेट हो रहा है, रेनी सीजन में। सम जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स आर, जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स क्या है, असम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। असम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर द फ्यू इंडियन स्टेट जहाँ पे जूट की कल्टिवेशन भारी मात्रा में होती है। वन मोर थिंग, ये ध्यान देने वाली बात है कि जूट रेनी सीजन में क्या होता है, कल्टिवेट किया जाता है। ओके, now completed up to here, fine. I am going to erase. Now the next thing is the plant is harvested during its flowering stage. Next is what, jute plant is harvested
during flowering stage. ठीक है. Now after that the stem of these harvested plant are then soaked in water for 4 to 5 days. The stems of these harvested plant, the stems of these harvested plant is then soaked in water for ठीक है. The stem of this harvested plant is soaked in water for 4 to 5 days. 4 to 5 days के लिए क्या किया जाता है, उसे पानी में सूखने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है. And finally what happened, the last stage of getting the jute fibers is the stems are left to rot and then the fibers are picked out by the hand. The stems are are left to rot and then the fibers are picked out by hand. And then the fibers are picked out by hand. अभी देखो क्या है, जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड. सबसे पहले क्या है, द जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज. देन फ्लावरिंग स्टेज में उसको काट लिया जाता है. उसके बाद उसको पानी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं कुछ दिन तक. ठीक है, 4 से 5 दिन तक उसे पानी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं. द स्टेम्स आर लेफ्ट टू रॉट एंड देन द फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय हैंड. स्टेम्स को छोड़ दिया जाता है पानी में एंड देन फाइबर्स को क्या किया जाता है, पिक किया जाता है. फाइबर्स आर पिक फॉर व्हाट, फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय हैंड. ठीक है, फाइबर्स को क्या किया जाता है, फाइबर्स आर पिक्ड बाय हैंड्स. ओके फाइन, राइट इट डाउन. Completed? Okay. So class, today we have discussed about the jute also. Fine. In now coming classes we will cover the leftover the topic. Those topics that are not completed yet, in our coming classes we will complete that. History of clothing. And then we will do a quick recall of the chapter. So this is it for today class, and now ma'am will meet you in the next class. Don't forget to write it down in your notes copy. Fine. So this is it. Bye bye.